A very good morning to you all students. Let us again start our first chapter of economics, that is development. In last class I have covered the half portion of the chapter in which we have discussed that different peoples are having different development goals, and for an individual income is not a development goal. Other things are also equally important like respect, freedom, security, equal treatment. Then we have started national development. For national development also different peoples are having different views. For comparing two countries or states we have taken certain things, and from that certain thing I have taught you one part, that average income is the first and foremost requirement for comparing two countries. What is average income? When we divide total income of the country by its total population, we get the average income. Average income is also called as per capita income. So for comparing two nations, two countries, two states, we use the first criteria, that is average income criteria. I have told you in last class that other criteria, other things are equally important for comparing two countries. ठीक है, तो what are the other things that we will discuss in today's class? So before starting this, open page number 10. You see this example, table 1.3. ठीक है, in table 1.3 three states are given: Haryana, Kerala and Bihar, and their per capita income means average income is given. Haryana's per capita income is 1,62,034. Kerala's average income is 1,55,516 and Bihar's average income is 34,168. तो अगर हम दो कंट्रीज को एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपेयर करें तो हम क्या बोलेंगे? ये एग्जांपल देखने के बाद we will say that Haryana is a developed state, Kerala is less developed than Haryana, and Bihar is totally underdeveloped state. After comparing these three states from average income criteria, what we will say that Haryana is more developed than Kerala and Bihar is totally underdeveloped state. Understand beta? So what I have told you कि only average income criteria is not enough. Other criteria are also important. Besides income, other criteria are also important for judging any nation. So what other criteria are there beta? So see table 1.4. Right now we have seen table 1.3 now. In table 1.3 states are compared to per capita income. Now we are going to see the table 1.4 कि what are the other criteria important for comparing any state or country. So in table 1.4 we will see that three other things are important for comparing two states or two countries, that is infant mortality rate, then literacy rate, then net attendance ratio. These three terms are important from board purpose for 1 marks. 1 marks के क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है. इन तीनों की डेफिनेशन या नीचे टेबल 1.4 में नीचे दी हुई है या आपको नोटबुक में करना है. तीनों की डेफिनेशन दे रखी है. तो लेट अस अंडरस्टैंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बेटा कि किसी भी कंट्री में अगर 1 ईयर से कम के जो चाइल्ड हैं दे आर डाइड बिकॉज ऑफ लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. डेफिनेशन रीड कर रही हूं मैं आप लोगों के लिए. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को IMR भी कहते हैं. It indicates that the number of children that die before the age of 1 year as per the proportion of 1000 live children born in that particular year. एक particular year में जो है 1000 बच्चों को कंपेयर में अगर जितने 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उन 1000 बच्चों पर कितने बच्चे जो है 1 साल से छोटे उस पर्टिकुलर ईयर में जिनकी डेथ हो रही है उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो अब इन तीनों स्टेट्स को अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे कंपेयर करें तो टेबल देखिए आप. हरियाणा की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पर 1000 चाइल्ड्स पर 36. ठीक है, 36 बच्चे डेथ हो रही है उनकी. केरला में 1000 में से सिर्फ 12
चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है। वहीं बिहार में 1000 में से 42 चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर, न्यू बॉर्न बेबीज की। ठीक है, तो ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर हम कंपेयर करेंगे इन्हीं तीनों स्टेट्स को लिटरेसी रेट पे। अब लिटरेसी रेट क्या होती है, देखो, मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल या 7 साल से ऊपर की एज में जो है कितने लोग कंट्री में या स्टेट में लिटरेट हैं, उनके बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो उस बेसिस पे अगर हम इन तीनों को स्टेट्स को कंपेयर करें तो ऊपर टेबल देखो, लिटरेसी रेट क्या है। हरियाणा की लिटरेसी रेट है 82%, केरला की लिटरेसी रेट है 94%, बिहार की लिटरेसी रेट है 62%। ठीक है, थर्ड थिंग हम डिस्कस करेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द, मतलब 14 से 15 साल के बीच में किसी भी कंट्री में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों में से कितने परसेंटेज स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उन बच्चों को कहा जाता है, उन बच्चों को की स्कूलिंग को कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो, मीन्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15। तो इसके बेसिस पे अगर हम इन तीनों स्टेट्स को जज करें तो ऊपर देखिए क्या हरियाणा में जो है 61% बच्चे जो हैं 14 से 15 की एज के बीच के जो है स्कूल अटेंड करते हैं, केरला में 83% और बिहार में 43%। तो जब हम सारे क्राइटेरियाज को कंपेयर करेंगे, अगर हम सिर्फ इनकम एज ए क्राइटेरिया ले रहे हैं इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर करने में, तो हरियाणा बेटर है। अपन ऊपर देखा ना बेटा पेज टेबल 1.3 में। बट हम सिर्फ इनकम को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लाइफ में और चीजें भी बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं इंडिविजुअल को कंपेयर करने में और देश को या स्टेट्स को कंपेयर करने में। तो अदर क्राइटेरियाज में हमने 3 चीजें ली, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इन सब चीजों को और इनकम को सबको मिला के देखें तो अब कौन सा स्टेट ज्यादा बेटर है। नाउ आफ्टर कंपेयरिंग ओवरऑल थिंग्स we will say that Kerala is the best state as compared to हरियाणा और बिहार। क्यों? क्योंकि केरला में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 12 है, 1000 में से सिर्फ 12 जो है चिल्ड्रंस हैं बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, दे आर डाइंग। सिर्फ 12 लोग मर रहे, मीन्स केरला में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। केरला में लिटरेसी रेट है 94%, वहीं केरला में नेट अटेंडेंस रेशियो है 83%। तो एज कंपेयर टू, और अगर इनकम देखी जाए तो वो भी केरला की हरियाणा से ज़्यादा कम नहीं है पर कैपिटा इनकम, थोड़ा सा ही फर्क है। तो सब कुछ फैसिलिटीज कहाँ अवेलेबल है, केरला में। तो आफ्टर सीइंग इनकम एज वेल एज अदर क्राइटेरिया वी विल सी केरला इज द डेवलप्ड स्टेट एज कंपेयर टू हरियाणा एंड बिहार। अंडरस्टैंड बेटा। अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज, अब इसमें वापस ऊपर के एग्जाम्पल के बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। ऊपर एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा कि इनकम वे पे क्या बेटर है, हरियाणा बेटर है। पर क्या इनकम होने से हरियाणा में हेल्थ फैसिलिटी आ गई क्या? इनकम होने से हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई क्या? नहीं। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि मनी, इनकम कांट बाय एवरीथिंग, मनी इन पॉकेट कांट बाय एवरीथिंग। सिर्फ पैसा होने से सब कुछ मिल जाता तो हरियाणा बेस्ट होता, पर पैसा होने के बाद भी हरियाणा में लिटरेसी रेट नहीं है, नेट अटेंडेंस रेशियो नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कम नहीं कर पाया है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं ला पाया है। तो ऐसे पैसे का हरियाणा क्या करेगा? आ रही है बात समझ में। वहीं केरला में थोड़ा कम पैसा है बट अदर फैसिलिटीज आर देयर, इसलिए केरला जो है हरियाणा से ज्यादा डेवलप्ड है। तो व्हाट आई वांट टू से कि मनी इन पॉकेट कांट बाय एवरीथिंग। अब हमारे पास पैसा है तो हम सोचेंगे कि पैसे से पॉल्यूशन को हटा दे, तो हम हटा सकते हैं क्या? हम नहीं हटा सकते। पैसे से हम सोचेंगे सिक्योरिटी खरीद ले तो खरीद सकते हैं क्या? नहीं। तो इन सब चीजों के लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा? पब्लिक लेवल पे सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम कलेक्टिव लेवल पे सोचेंगे, ग्रुप लेवल पे सोचेंगे, सबका सोचेंगे, मिलके सोचेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और सब सिर्फ अपना अपना सोचेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी में अगर थीव्स का, चोरों का खतरा है
तो हर घर अपना अपना चौकीदार रखे, इससे बेटर है कि पूरी सोसाइटी मिलकर कलेक्टिव वे में एक चौकीदार रखे, तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे वो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर हमको डेवलपमेंट करना है लाइफ में, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो हमको मिल के सोचना पड़ेगा, पब्लिक लेवल पे सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे सोच के वी कांट डेवलप, वी शुड थिंक इन अ कलेक्टिव वे। अंडरस्टैंड बेटा? ये सब आप रीड करना बेटा, अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 12। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2, जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज को कंपेयर किया गया है। तो ये आप अपने आप पढ़ोगे, इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछोगे। अब आप आओ पेज नंबर 13 पर, एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में दे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें ये दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी जो है एचडीआई मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इंपॉर्टेंट है, मीन्स इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन को। यूएनडीपी क्या कह रहा है कि इनकम के अलावा हेल्थ और एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए किसी भी दो स्टेट्स को और कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो ये एक्टिविटी भी आप पढ़ोगे बेटा, इसमें कोई दिक्कत आ रही है ये दोनों एक्टिविटीज में तो यू कैन आस्क मी। आज का हम लास्ट टॉपिक देंगे अपने चैप्टर का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विद फ्यूचर जनरेशन, नॉट विदाउट फ्यूचर जनरेशन। डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मीन्स आज के डेवलपमेंट के लिए हमको अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस नहीं करना है, हमको डेवलपमेंट करना है, पर डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि हम अपने भविष्य को साथ में लेके चले, अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर चले। तो हमको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हम आज तो डेवलप करें पर हम अपने फ्यूचर को भी लेके चले। तो इस चीज को अपन कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट करते समय हम ये नहीं सोचेंगे कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बचा देते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में नहीं सोचते। बेटा किसी भी चीज को बनने में, रिन्यू होने में, रिसाइकिल होने में काफी लंबा समय लग जाता है। जैसे वाटर है तो वाटर क्या होता है, रिसाइकिल होता है, रिन्यू होता है। तो हम ये सोचे कि वाटर को अनलिमिटेड यूज करते चले जाता है, ये तो रिसाइकिल हो सकता है, बट दिस इज रॉन्ग। उसको रिसाइकिल होने में, रिन्यू होने में लंबा समय लग जाता है। तो चाहे रिन्यूएबल रिसोर्स हो चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, सबको हमको सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, फ्यूचर को साथ में लेके चलना चाहिए। और ये जो आइडिया है सस्टेनेबिलिटी का, इट रिमेन्स विद अस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, इट कीप्स ऑन गोइंग विद अस इन टूडेज टाइम, जहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इतने सारे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है। तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को सीरियसली हर समय अपने साथ रखना चाहिए, हर समय सोच समझ के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। तो डेवलपमेंट करना है पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो हियर अवर चैप्टर एंड्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होमवर्क में आप बैक क्वेश्चंस करोगे सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये नोटबुक टेक्स्ट बुक में ही टिक कर लेना। और फोर्थ क्वेश्चन से लेकर आप सारे 13 क्वेश्चन तक नोटबुक में करोगे, ये आपका होमवर्क है। हियर अवर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, थैंक यू।